Uh, so I've already gone ahead and created a machine learning workspace और उसके अंदर सारा जो infrastructure चाहिए, the compute resources needed, those have already been created. और कुछ आज की notebooks, we have 3 notebooks for the 3 concepts that we talked about, वो यहाँ पे पहले से uploaded हैं और मैंने इन्हें ऑलरेडी रन भी कर लिया जस्ट सो दैट वी डोंट हैव टू वेट wait longer amounts of time for the experiments to finish, because hyperparameter tuning or AutoML के experiments can take a while to run, or it wouldn't be exactly ideal for us to spend that much time in the demo just waiting for the experiment to finish. So I've gone ahead and run these, but just to give you a walkthrough of the code, and just to give you a tangible view of what you're working with while you're going through hyperparameter tuning. Uh, let's walk through the notebook, right? So you start by as with all machine learning experiments, as with all everything to do with notebooks in Azure ML, you will connect your workspace. Once you connect your workspace, you will need to create a data set to work with, और we're using the same data set जो हमने पहले bank notes वाला data set जिसके साथ काम किया हुआ है. By now we are pretty familiar with it, so I guess this won't be a problem for anyone. हमने एक tabular data set register कर लिया, and then we'll be able to work with it. The next thing we want to do is अगर हमने एक hyper parameter tuning था, एक hyperdrive experiment build करना है, so we need to have a training script for it. For that training script, we are creating an experiment folder in which we'll put the training script and the data files जिसके साथ हम काम कर सकें. और as we talked before, training script के अंदर there are going to be two small changes. The first change is कि जो आपका regularization या जो भी आपका hyper parameter है, यहाँ पे our hyper parameter is regularization rate, right? So all hyper parameters have to be added as arguments to the script. The second major change would be that once you're once you've done the data splitting into train tests, and then once you're done running a model on it, once you're done the training, afterwards जो आपका performance metric है, which in our case is area under the curve AUC, उसको log करना बहुत ज़रूरी है, because hyperparameter hyperdrive जो है, that will use this metric to figure out कि कौन सा मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा बुरा परफॉर्म कर रहा है, किसकी अर्ली डिटर्मिनेशन कर देनी चाहिए इन मॉडल, राइट? The next thing we do is we prepare a compute target. हम एक compute cluster create करते हैं जिसके ऊपर हमने अपना ये hyperdrive experiment run करना है, और उसके लिए भी we're using the standard DS11 V2 machine. Cluster creation भी हम लोग पहले देख चुके हैं. You should be pretty familiar with it by now. There shouldn't be anything that you don't understand, even if you don't remember the code. There shouldn't be anything that you don't understand here. Once you create the cluster, then हमने अपना एक hyperdrive experiment build करके वो run करना है, right? और उसके लिए hyperdrive के लिए हमें चंद चीज़ें चाहिए, जिस some tools, एक सैम्पलिंग की कोई ना कोई टेक्निक चाहिए, अर्ली टर्मिनेशन की कोई ना कोई टेक्निक चाहिए, और उसके लिए हम ये कुछ पैकेजेस इंपोर्ट करते हैं, कुछ फंक्शन इंपोर्ट करते हैं वहाँ से, और वी कंस्ट्रक्ट आवर sklearn एस्टिमेटर, और अपने एस्टिमेटर को हमने अपनी वही ट्रेनिंग स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर दी है, एक्सेप्ट दैट हम डायरेक्टली इस एस्टिमेटर को एक्सपेरिमेंट के अंदर रन नहीं करते.
we create a hyperdrive configuration, or hyperdrive configuration will be using this estimator as the template, जिसके ऊपर उसने मुख्तलिफ hyper parameter के combinations try करने हैं. और the other thing that we tell to this hyperdrive configuration is कि आपके ये वाले parameters हैं जिनको यूज करके आपने हाइपर पैरामीटर सैम्पलिंग करवानी है. सो मसलन ग्रिड सैम्पलिंग जो है वो हमने यहाँ पे यूज किया, और ग्रिड सैम्पलिंग के अंदर हमने पूरी पूरी ग्रिड की सारी सारी चॉइसेस हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं कि 0.001, 005, 01, 05, 1 एंड 1.0. और यहाँ पे अगर मैं चाहता तो अगर कोई और वैल्यूज में बीच में ट्राई करना चाहता हूँ तो if I want to try 0.8, I can do that. And that's how you define the parameters. ठीक है. Once you have defined the parameters और वो आप अपनी hyperdrive configuration को दे देते हो, then you can tell your hyperdrive configuration के कौन सा ऐसा metric है, which metric is it going to be, which we're going to be looking out for, जिसको हम optimize करना चाह रहे हैं. In our case, it's not the accuracy but the area under the curve of this model that we'll be training. और हम इस area under the curve को maximize करना चाह रहे हैं. There will be machine learning problems जहाँ पे हम अपने primary metric को minimize करना चाहते हैं, but in this case we're trying to maximize it. और इस maximization के लिए what else can we declare? The other thing that we can declare is कि maximum total कितनी runs की जाएंगी, कितने total different model iterations train की जाएंगी, जिनके ऊपर हम ये जिनके अंदर से हम लोग decide करेंगे कि कौन सा model best है. और यहाँ पे मैंने कह दिया कि 6 maximum runs हो सकती हैं, और 6 के बाद kill this hyperdrive experiment. और इन 6 में से 4 ऐसी हैं जो कि at any time 4 of those can be run in parallel, यानी multiple experiments would be running in parallel. और इस hyperdrive configuration के साथ we submit an experiment in our workspace, or we then run that experiment and wait for it to finish. The thing that you will see is somewhat like this. एक तो आपका regular experiment run की जो भी details आती हैं और logs आती हैं, this you know कि ये इस तरह से आया करते हैं. The other thing you will see in your hyperdrive experiment is आपके पास इस तरह का एक table आएगा, आना शुरू हो जाएगा in the output, जिसके अंदर you will be able to see कौन सी run कब स्टार्ट की गई, रन की आईडी क्या थी. बट द कूल थिंग इज के यू विल बी एबल टू सी के हर रन के अगेंस्ट आपका जो भी परफॉर्मेंस मेट्रिक था, विच इन आवर केस इज AUC, उसकी क्या वैल्यू रही है. सो वन वे टू सी इट, see this performance is here. The other way to see this is if you go back to your experiments, और अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर से अपना हाइपरड्राइव वाला एक्सपेरिमेंट जो है उसे खोल के उसके अंदर मल्टीपल रन्स को आप विजुलाइज करके देखें. Yeah. Okay, this is AutoML experiment named wrongly. Sorry. Let me figure out where this run is. Yeah, you will get a link to see this in Azure Machine Learning Studio. Click that link; it will take you to the experiment.
Let's try that again one time. जी, so इस रन के अंदर मुख्तलिफ चाइल्ड रन्स की गई हैं, मुख्तलिफ 6 मॉडल्स जैसे शुरू में हमने डिफाइन किया था कि मैक्सिमम 6 वो मॉडल्स ट्रेन होंगे और हर मॉडल के अगेंस्ट क्या AUC आ रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज समथिंग दैट वी कैन सी हियर, और उन मॉडल्स के अगेंस्ट क्या AUC आ रहा है, और वो वाला सारा का सारा टेबल्स हम अपने Azure के ML Studio से भी देख सकते हैं. If there are any logs that you'd like to take a look at, या अगर आपने उस मॉडल को ट्रेन करवाने के बाद कोई ग्राफ या कोई चार्ट आउटपुट करवाया होता है, you could have taken a look at that here. But the point is that once you've run your hyperdrive experiment, तो उसके अंदर as part of that hyperdrive experiment जितने भी models train हुए हैं, those models can be seen here. आप अपनी child runs के अंदर उनकी details देख सकते हैं. और the next thing to do is once you've run your experiment, तो इसमें से the thing is you have to find out which was your best model जो कि आपका ट्रेन हुआ है. In which case आप अपनी चाइल्ड रन्स में से जिस भी रन के लिए बेस्ट आपका प्राइमरी मेट्रिक आया, परफॉर्मेंस मेट्रिक आया, उस मॉडल को आप सेलेक्ट करते हैं, एंड देन यू कैन just register that model, get that model's pickle file and just register that model and put it into productionization. Maybe if you want to deploy it to a Azure Kubernetes cluster, that is something that you can do. But you see how simple it was to just add a simple configuration on top of our regular estimators. और हमने अपनी ट्रेनिंग स्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ 2 छोटी चेंजेस की, एंड नाउ मल्टीपल रन्स ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट वर डन with a range of hyper parameters. वहाँ पे मैं multiple hyper parameters ऐड कर सकता था, but for the sake of our experiment we just used a single one. The other thing जो कि हम जो हमने डिस्कस की थी, दैट वाज ऑटो ML. और ऑटो ML के अंदर अगेन वी कनेक्ट टू आवर वर्क स्पेस. हम सेम डेटा सेट यूज कर रहे हैं जो हमने ऑलरेडी बैंक नोट्स वाला डेटा सेट यूज किया है, और उसके अंदर हमने the only thing different from the previously जो हमने पिछली 5A नोटबुक रन की है, उससे सिर्फ एक फर्क है, वो ये कि हम अपने बैंक नोट्स डेटा सेट को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक यहाँ पे क्रिएट करते हैं उस डेटा सेट का, और इस ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को हम यूज करेंगे ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग करने के लिए. और ऑटो ML करने के लिए अगेन वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ कंप्यूट टारगेट, जो कि मेरा सेम क्लस्टर आ रहा है, और इस क्लस्टर के ऊपर आई डोंट हैव टू राइट अ ट्रेनिंग स्क्रिप्ट. जैसे हमने यहाँ पे पिछली नोटबुक के अंदर एक पूरी यहाँ पे एक ट्रेनिंग स्क्रिप्ट लिखी थी, जिसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट पार्सिंग कर रहे थे, ट्रेन स्प्लिट करके मॉडल सिलेक्शन कर रहे थे, सिलेक्शन करने के बाद उसकी ट्रेनिंग और प्रेडिक्शन वगैरह कर रहे थे. वी डोंट हैव टू डू एनी ऑफ दैट. All we have to do is create a configuration file, and I'll show you in a minute an easier way to do auto ML, which is through the graphical user interface. But सही क्वेश्चन है सर. ऑटो ड्राइव में जो हमने मॉडल्स हैं, ये खुद हमने कोड में डाले हैं या ऑटोमेटिकली कहाँ से सिलेक्ट किए, रैंडमली सिलेक्ट किए, या खुद हमने कोड में लिखा कि ये मॉडल्स यूज करें? सॉरी, हाइपर ड्राइव की बात करें आप, पिछली नोटबुक 5A. हेलो, हाइपर ड्राइव की सर, हाइपर ड्राइव की बात कर रहा हूँ.
नहीं, हाइपर ड्राइव के अंदर खुद मॉडल यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था ना कि दिस इज अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल के अंदर हमारा एक रेगुलराइजेशन कोएफिशिएंट था और हम इस हाइपर पैरामीटर को बेसिकली ट्यून कर रहे थे। सो मॉडल हमने खुद डिफाइन किया हुआ था, राइट? ओके इन ओके सर। in AutoML we won't even have to do that. हमें ये भी नहीं डिफाइन करना पड़ेगा कौन सा मॉडल यूज करो. All we have to do is create a configuration for our AutoML experiment, जिसके अंदर all we have to tell the code is कि task कौन सा है. Is it a regression task? Is it a classification task? Is it a you know टाइम सीरीज प्रिडिक्शन टास्क? ठीक है, और वो टास्क आप यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं. इन आवर केस इट्स क्लासिफिकेशन, सो रिटन क्लासिफिकेशन. कंप्यूट क्लस्टर हमारा कौन सा है? लोकल आप नोटबुक के ऊपर उसी कंप्यूटर के ऊपर आप रन कर रहे हो, ठीक है, लोकल मैनेज्ड है. ट्रेनिंग डेटा आपका कौन सा है? ये जो हमने अभी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यहाँ पे यूज किया था, वहां से वी विल यूज द ट्रेन डीएस डेटा सेट एंड द टेस्ट डेटा सेट. लेबल कॉलम का हम बता देंगे कि दिस इज द लेबल कॉलम. कितनी आइटरेशंस आपने रन करनी है, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स वगैरह आप उनके ऊपर कितने मॉडल्स ट्रेन करेंगे, ये आप यहाँ पे बता देंगे. एंड अगेन द प्राइमरी मेट्रिक जो आप यूज करेंगे मॉडल की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए. और you'll see कि हमने फीचराइजेशन भी ऑटो कर दिया, जिसका मतलब है it will automatically take care of the data cleaning part and the the feature creation part. अगर कोई कैटेगोरिकल वेरिएबल है तो उसका वन हॉट एनकोडिंग वगैरह, वो सारी की सारी फीचराइजेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी. You just create a AutoML configuration like this, and then in your create an experiment, और experiment के अंदर just आप उसको submit कर दें. And what you'll see is कि as an output we can see कि there are a lot of different models that were tried here. But before I go through this, I would like to show you how to do this in an even easier way, which is using our machine learning studio. तो जब आप मशीन लर्निंग स्टूडियो में होते हो और अगर आपने यहाँ पे अपना डेटा सेट ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर लिया हुआ है, इन आवर केस हमने यहाँ नोटबुक से अपडेट किया अपलोड किया था यहाँ पे डेटा सेट, बट आप ग्राफिकली भी डेटा सेट क्रिएट कर सकते हो. वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट. All you have to do to get to ML is you will see automated ML here on the left, and it's in the preview phase right now. It will get to much more maturity later on. Or all you have to do is click on create a new automated ML run. It will ask you कि कौन सा data set आप use करना चाहते हैं अपने auto ML experiment के लिए. So we select the banknotes data set, जो कि tabular data set है. Click next. If we want to go ahead and use a previous experiment, हम पिछला एक्सपेरिमेंट यहाँ से यूज कर लेते हैं, उसी की एक नई आइटरेशन रन कर लेते हैं, और हमारा टारगेट कॉलम यहाँ पे कौन सा होगा. सो वी कैन सी कि कौन कौन से कॉलम्स इस डेटा सेट के अंदर अवेलेबल हैं, और वी आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट वेदर द banknote was fraudulent or not. So we select our target column, हमने अपना कंप्यूट यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, एंड दैट्स इट, राइट. हमने डेटा सेट कंप्यूट ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे डिफाइन कर दी. देन वी सिलेक्ट द टास्क टाइप, हम क्लासिफिकेशन करवा रहे हैं. If we want to do machine deep learning, then this is how we enable this here. कि अच्छा deep learning के भी इसके ऊपर मुख्तलिफ एल्गोरिथम ट्राई करके देख लो, या डिफरेंट उसके न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स ट्राई करके देख लो. Right now we don't want to do that. The other thing was कि हमारा प्राइमरी मेट्रिक कौन सा होगा मॉडल की परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए. वो यहाँ पे हम एक्यूरेसी, AUC वेटेड, या मुख्तलिफ हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनके अंदर से हम यूज कर सकते हैं कि किस बेसिस के ऊपर ऑटो ML हो. एंड द अदर थिंग दैट समवन वाज आस्किंग अबाउट वाज कि अगर हमें पता है कि XYZ एल्गोरिथम जो है वो तो बेहतर नहीं है, या सिर्फ
इसके अंदर ट्री टाइप एल्गोरिदम्स जो है वो काम करेंगे, और हमें इंट्यूशनली पता है कि इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम के लिए ऑटो एमएल को भी सिर्फ ये सेट ऑफ एल्गोरिदम्स यूज करना चाहिए, देन वी कैन block out algorithms from our auto ML experiment, जो कि यहाँ पे मे बी आई से कि SGD को मत यूज करो, नाइफ बेस नहीं यूज करो, बर्नौली नहीं यूज करो, SPM, और एट द एंड मे बी आई जस्ट हैव परसेप्ट्रॉन भी निकाल दिया, TNN भी निकाल दिया। सो मे बी मैं कहता हूँ कि सिर्फ इन 5 एल्गोरिदम्स के अंदर से यूज करना, जो ये मेरे पास नीचे आते हैं, logistic regression, decision tree, random forest, light gradient boosted models, और XGBoost classifiers, सिर्फ ये यूज करो। All the other algorithms are now blocked as part of this run, और exit criterion भी हम वो जो early stopping वगैरह everything that we talked about, वो वाली चीज़ भी हम यहाँ पे define कर सकते हैं कि training job maximum कितनी देर चलेगी, कोई भी training job 3 घंटे से ज़्यादा चले तो बंद कर दो, जितनी ट्रेनिंग हुई है हो गई, दैट्स इट। ठीक है। वैलिडेशन कैसे करनी है? वैलिडेशन के लिए आपने के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन यूज करनी है, ट्रेन वैलिडेशन स्प्लिट यूज करना है, मॉन्टे कार्लो क्रॉस वैलिडेशन यूज करनी है। यू वोंट हैव टू राइट एनी ऑफ दिस कोड, ऑल यू हैव टू डू इज सिलेक्ट फ्रॉम हियर कि अच्छा 5 क्रॉस वैलिडेशंस करवा दो, कॉन्करेंसी एट मैक्स एक टाइम के ऊपर 2 आपके एक्सपेरिमेंट्स करना होगा। सो इस तरह से आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं। और फीचराइजेशन के अंदर अगेन यहाँ पे हमारे पास क्योंकि सारे के सारे फीचर्स वो न्यूमेरिक हैं, तो न्यूमेरिक के ऊपर देयर आर ओनली लाइक सो मच that you can do with that feature, but इसके अंदर imputation अगर आप खुद से हार्ड एंड फास्ट सेट करना चाहते हैं कि इसके अंदर अगर कोई मिसिंग वैल्यूज हैं तो उसे बाकी वैल्यूज के मीन से अगर आप इंप्यूट कर लें, या मोस्ट फ्रीक्वेंट से इंप्यूट कर लें, या मीडियन से इंप्यूट कर लें, या फिर हमारे पास ये वाली ऑप्शन भी है कि लेट ऑटो एमएल डिसाइड कि इनमें से कौन सी ऑप्शन यूज करनी है या कैसे इंप्यूटेशन करनी है, राइट। तो हम वो फीचराइजेशन भी इसके थ्रू कर सकते हैं, एंड दैट विल बी fully automated. All we have to do then is, once we've defined all of this graphically, we just click on finish and it will start a new auto ML run, और उस रन का जो भी उस रन से जो भी आपके बेसिकली मॉडल्स यील्ड होंगे उनको आप देख सकेंगे। जैसे हमारे पास एक पिछली यहाँ पे ऑटो एमएल की रन यहाँ पे एक की हुई है मैंने, जस्ट टू शो यू कि उसका क्या रिजल्ट रहा है। जो रन हमने मसलन यहाँ से अभी रन की थी, क्रिएट की थी, उसके अंदर वोटिंग ensemble, स्टैक ensemble और XGBoost, लाइट GBM, रैंडम फॉरेस्ट, ये सारे के सारे मॉडल्स के अगेंस्ट क्या AUC की वैल्यू आती रही है, ठीक है, और इनमें से बेस्ट कौन सा है वो हमारे लिए चूज करना काफी आसान हो जाता है, राइट। गिवन दीज ग्राफ्स, गिवन these metrics against those trained models, हमारे लिए काफी आसान हो जाता है कि हम सिलेक्ट कर सकें कि बेस्ट मॉडल कौन सा था। एंड देन इस ऑटो एमएल रन को जस्ट आप खोल के डिटरमिन कर सकते हैं कि कौन सा मॉडल बेस्ट था। फॉर इंस्टेंस अगर मैं इस मॉडल को खोलता हूँ तो इसकी मुझे डिटेल्स भी यहाँ से मिल जाएगी। अगर मैं इसकी मॉडल फाइल यहाँ से एक्सेस करना चाहता हूँ तो वो भी मुझे यहाँ से एज आउटपुट मिल जाएगी कि model.pickle यहाँ पे stored है। If I directly want to deploy this model, I just all I have to do is just like click deploy। यहाँ पे मैं deployment की अपनी configuration set करूँगी, Kubernetes service के ऊपर कर रहा हूँ और जो भी compute वगैरह है, each and everything, and it's as simple to just train and deploy a model with AutoML, right? Now the last thing that we talked about was how to interpret models और explainability वगैरह कैसे की जाए। Now this is something जो कि हम
on runtime कर सकते हैं without having to wait too much for Azure ML to process in the back end. Uh, so explainability के लिए first of all we need to have a model. So again वही वाली classification की decision tree classifier की एक मैंने script यहाँ पे लिखी है और उससे we train a model. Let's do that. So हमारे पास एक डेटा लोड होता है, हम एक ट्रेनिंग डिसीजन ट्री क्लासिफायर ट्रेन कर लेते हैं जिसकी 97.8% एक्यूरेसी आ रही है और जिसका एरिया अंडर द कर्व भी सेम है, राइट? नाउ वी वांट टू नो, नाउ वी वांट टू फिगर आउट के हाउ मच इंपॉर्टेंस डज दिस मॉडल गिव टू ईच एंड एवरी वन ऑफ द फीचर्स और ये डिसीजन मेकिंग कैसे करता है। उस decision making के लिए we use one of the explainers that we talked about. We talked about tabular explainer, we talked about your PI explainer जो आपकी permutation importance feature importance का था explainer, वो भी use कर सकते थे. But right now we'll go with tabular explainer जो कि आपके वही sharp technique use कर रहा था to do the explanation, right? We pass our model to it. हम अपना ट्रेनिंग सेट इसे देते हैं कि ट्रेनिंग में हमारे फीचर्स कौन से थे, इस मॉडल को इनपुट जो इस मॉडल को इनपुट होंगे, ठीक है। हम ये डिफाइन करते हैं कि उनमें से फीचर्स कौन से हैं और उनमें से क्लासेस के लेवल्स कौन से थे, राइट? एंड बेसिकली हम वही इंटरप्रिटेशन वाली ब्लैक बॉक्स इंटरप्रिटेशन वाली एक लाइब्रेरी में से एक क्लास यूज करें, टेबुलर एक्सप्लेनर, एंड यू डोंट हैव टू worry about writing the code at the back end. All you have to do is do this API call, right? And the next thing to do is once you have your explainer instantiated, so all you have to do is give it your data, जो यहाँ पे फिलहाल we're giving it explain right back to it. अगर हम इसके अलावा हमारे पास कोई नई एग्जांपल्स आ रही होती तो वो हम एग्जांपल्स यहाँ पे उससे देते और उससे हम कहते हैं कि explain करो. And we're calling the explain global method on it. We could also call we could also judge it for explaining local importance. Global importance, as we talked about, was telling us that over this whole data set इस मॉडल के डिसीजंस कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. तो ग्लोबल फीचर इंपॉर्टेंस के अंदर वी सी के जो भी फीचर इंपॉर्टेंसेस आ रही हैं वो जब हम प्रिंट करवा के देखते हैं उसके अंदर मुझे ये नजर आ रहा है कि वेरिएंस, मेरे पास 4 फीचर्स थे, वेरिएंस, स्क्यू, कर्टसिस एंड एंट्रोपी. इसके अंदर मुझे ये नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इन एनी डिसीजन इज given to this feature, variance, right? Or this is a value that will scale between 0 and 1, right? So the closer it is to 1, then that means this feature gives more and more direct information about the labels. Or the closer it is to 0, that means कि उसके अंदर उतनी ही कम information है about your predictive variable. So मुझे global explanation से ये मॉडल ट्रेन करने के बाद ग्लोबल एक्सप्लेनेशन से ये पता चल रहा है कि कौन से फीचर्स जो हैं वो मेरे इस डिसीजन के अंदर अच्छा रोल प्ले करते हैं, एक बड़ा रोल प्ले करते हैं. तो अगर आप अपनी किसी एप्लीकेशन के अंदर किसी ऐसे सेंसिटिव डेटा के साथ काम कर रहे हैं तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू टू फिगर आउट कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिसकी बेस के ऊपर डिसीजन हुआ. द सेकंड थिंग दैट वी टॉक्ड अबाउट वाज लोकल फीचर इंपॉर्टेंसेस, जिसके अंदर हम सिंगुलर इंस्टेंसेस के ऊपर बात करते हैं इंस्टेड ऑफ ओवर द होल डेटा सेट. यहाँ पे तो पूरे के पूरे ट्रेनिंग सेट के ऊपर हमने इंपॉर्टेंस चेक कर ली ना कि कौन से फीचर की कितनी इंपॉर्टेंस आ रही है. व्हाट इफ कोई उसके अंदर से सिंगल रो के ऊपर हम चेक करना चाह रहे होते कि so maybe we'll select just 2 rows और उन पहली रोज 2 रोज के ऊपर हम टेस्ट करना चाह रहे हैं कि
कि हमारा मॉडल कौन से फीचर को यूज करते हुए अपनी क्लासिफिकेशन डिसीजन को रीच कर रहा है, राइट। सो हम अपनी प्रिडिक्शन कॉल करते हैं इसके ऊपर, और उसी अपने टैबुलर एक्सप्लेनर के साथ एक्सप्लेन लोकल कॉल कर देते हैं, और एक्सप्लेन लोकल से अब हमें नाउ वी गेट आवर local tabular feature importances, right? Or there's a bunch of code to print it out, print it all out for you, uh, but we can see the output, or output के अंदर let's take a look at this in detail. So मेरे पास जो मेरी पहली observation थी, let me actually print out the observations as well, right? So मेरे पास मेरे पास जो ऑब्जर्वेशंस आ रही थी पहली दो, उसके अंदर मेरे पास वेरिएंस की ये थी वैल्यू, कर्टसिस की ये थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, स्क्यू और एंट्रोपी की ये वैल्यूज आ रही थी। गिवन दोज वैल्यूज मेरे पास इसकी प्रेडिक्शन आ सकती है आइदर कि इट वाज नॉट फ्रॉडुलेंट, या फिर मेरे पास डिसीजन आ सकता है कि इट वाज फ्रॉडुलेंट, राइट। और दोनों डिसीजंस के केसेस के अंदर मेरे कौन सा फीचर उस डिसीजन के हक में कितना ज्यादा टिल्ट हो रहा है, दिस इज व्हाट वी सी हियर। सो द क्लोजर इट गेट्स टू +1, then that means that ये फीचर उतना ज्यादा इस डिसीजन को वे इन कर रहा है, and the closer it gets to the negative thing, that means कि ये फीचर इस डिसीजन के उतना ही अगेंस्ट जा रहा है, राइट। सो हर ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट हमें ये पता चल रहा है कि नॉट फ्रॉडुलेंट के लिए मेरा कर्टसिस भी बहुत अच्छा नहीं वे कर रहा, इट्स ओनली लाइक 5%, एंट्रोपी भी नहीं, स्क्यू भी नहीं, और स्क्यू और वेरिएंस तो खैर नेगेटिव में जा रहे हैं, व्हिच मींस नॉट फ्रॉडुलेंट तो डेफिनेटली नहीं है, और टोटल ओवरऑल मेरा डिसीजन जो है इसके अगेंस्ट इतना ज़्यादा जा रहा है। और इतना ज़्यादा क्यों जा रहा है वो भी हमने देख लिया कि बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दीज फीचर्स जो कि डिसीजन के बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हैं। और ऑब्जर्वेशन 2 के अंदर अगर what does the same model say about it being fraudulent, सही है। तो fraudulent के केस के अंदर मुझे नजर आ रहा है कि वेरिएंस जो है that is seeing with quite a lot of confidence, with like 51% confidence it is saying that this observation, this feature set that you just input was indeed fraudulent, और स्क्यू इतना ज़्यादा वेन नहीं कर रहा, इट इज़ रियली मिनिस्क्यूल, वर्टिसेस और एंट्रोपी भी बिल्कुल ऑलमोस्ट नेगेटिव में जा रही हैं। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि मेरे बाकी तीनों फीचर्स जो हैं कुछ भी नहीं कह रहे इस डिसीजन के अंदर, उनका इतना ज़्यादा रोल है ही नहीं। मेरा फ्रॉडुलेंट कहने का सबसे ज़्यादा रोल है इस वेरिएंस के ऊपर, जिसका मतलब है कि मैं इस डिसीजन को बैक ट्रैक कर पा रहा हूँ कि इस बैंक नोट के इमेज को अगर मेरे मॉडल ने फ्रॉडुलेंट कहा है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द वेरिएंस। तो नाउ लुकिंग एट दिस एक्सप्लेनेशन, अगर मैं इस एक्सप्लेनेशन को ओवरराइड भी करना चाहूँ तो मैं मैनुअली ऑब्वियसली मैं कर सकता हूँ अपना डिसीजन मेकिंग, तो जारी बात है क्योंकि दैट्स अ ह्यूमन प्रोसेस। तो वी कैन चूज वेदर टू ट्रस्ट the output of this model or not based on whatever explanation it is giving us. If we think that the explanation it gave us does not matter in this certain case, yeah, does not hold as much sway in a certain scenario, तो फिर आप उसे override कर सकते हैं, right? And the same kind of thing can be done with your training experiments, क्योंकि हमने ज़्यादातर काम जो लेटली हम लोग करते आ रहे हैं वो उसके अंदर हम अपनी एक ट्रेनिंग स्क्रिप्ट क्रिएट किया करते हैं और अपनी ट्रेनिंग स्क्रिप्ट को एक्सपेरिमेंट के थ्रू सबमिट करते हैं अपने एस्टिमेटर्स को यूज करते हुए। व्हाट इफ हमने इसी तरह की अपनी एक ट्रेनिंग स्क्रिप्ट क्रिएट की जिसके अंदर अगेन
मेरे पास Sir, one question. Sir, question. How can we interpret fraudulent and non-fraudulent from variance cues? I mean, what the variance tells, what the variance actually tells about that it's fraudulent. I mean, अच्छा what is skew जो and entropy about that information? What sort of information we get from variance, skew, entropy in poultices? अच्छा ये चीज जो आप पूछ रहे हो ना, दैट हैज टू डू विद योर सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन और आपकी सब्जेक्ट मैटर की अंडरस्टैंडिंग है बेसिकली, ठीक है। इन आवर केस वी नो कि जो वेरिएंस, क्यू, एंट्रोपी और कर्टोसिस हैं, दीज आर बेसिकली योर स्टैटिस्टिकल फीचर्स कैलकुलेटेड ऑन टॉप ऑफ अ बैंक नोट इमेज, ठीक है। उस इमेज के अंदर पिक्सेल्स की क्या वेरिएंस आ रही थी और पिक्सेल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन एक बन रही थी उसमें क्या स्क्यू था, क्या एंट्रोपी फैक्टर था और उस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कितना कर्टोसिस एग्जिस्ट कर रहा था, ये वो फीचर्स हैं, ठीक है। और इन इन फीचर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो आपकी सब्जेक्ट मैटर अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करती है। हो Sir, सकता है हो सकता है कि मैं यहाँ पे अगर एक डिफरेंट प्रॉब्लम की अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं कि बेस्ड ऑन, सो मे बी मेरे पास प्रॉपर्टी का डेटा है, राइट, हाउसेस की इंफॉर्मेशन है, रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन है कि घर का साइज कितना है, कितने मरले का घर है या कितने केनाल का घर है, कितनी उसके अंदर फ्लोर्स हैं, कंस्ट्रक्शन कैसी हुई है, किस ईयर में कंस्ट्रक्ट किया गया है, कितने बेडरूम्स हैं, कितने बाथरूम्स हैं, एंड बेस्ड ऑन ऑल दैट आई प्रिडिक्ट वेदर इट्स गोइंग टू बी सोल्ड विद इन द नेक्स्ट मंथ और नॉट, ठीक है। दैट इज ऑल्सो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। और उसके अंदर यहाँ पे मेरे फीचर्स की जगह के ऊपर वो वाले फीचर्स आ रहे होते जो जिनकी अभी मैं बात कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ बेडरूम्स, नंबर ऑफ बाथरूम्स, ठीक है, हाउस साइज, ठीक है, और मे बी फोर्थ वन कुड बी कि उसकी कंस्ट्रक्शन कौन से ईयर की है, रीसेंट कितना टाइम पास कर गया है। नाउ बेस्ड ऑन दीज नंबर्स we could tell कि अच्छा मे बी नंबर ऑफ बाथरूम्स और घर का साइज या जो उसकी कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन ईयर है, उनसे उन पे इतना डिपेंड नहीं करता कि अगले एक महीने के अंदर ये घर बिक जाएगा या नहीं बिकेगा, लेकिन द नंबर ऑफ बेडरूम्स डिटरमिन्स के ये मॉडल सोच रहा है या इस मॉडल की ने ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप की हुई है कि नंबर ऑफ बेडरूम्स डिटरमिन कर रहा है कि ये घर बिक जाएगा। दिस इज हाउ यू इंटरप्रेट दैट मॉडल। आई होप के एक इंटरप्रिटेशन की इस एग्जांपल से यू हैव अ लिटिल मोर क्लैरिटी। okay, sir. सो ये पहला पहला वाला एग्जांपल तो हमने किया था ना, जिसके अंदर हमने इसी नोटबुक के अंदर यहीं पे मॉडल ट्रेन किया। बट व्हाट इफ हमारा मॉडल कहीं एज एन एक्सपेरिमेंट रन हमने उसे रन किया है, उसके साथ हम अपने इस मॉडल को यू नो इसकी इंटरप्रेटेबिलिटी, इसकी एक्सप्लेनेबिलिटी ऐड करना चाहते हैं, तो हमारी ट्रेनिंग स्क्रिप्ट के अंदर थोड़ा सा चेंज आएगा। The little change that will come is कि हम जहाँ पे अपना मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं वहाँ तक हमारी स्क्रिप्ट एज इट इज है। जहाँ पे हम उसके ऊपर स्कोरिंग करके उसकी एक्यूरेसी वगैरह कैलकुलेट कर रहे हैं, AUC कैलकुलेट कर रहे हैं, वो भी वहीं पे है। हमने अपने मॉडल को सेव करवा लिया, वो भी वहीं पे है। एट द एंड वी आर जस्ट एडिंग आवर टैबुलर एक्सप्लेनर, और टैबुलर एक्सप्लेनर के अंदर हम अपना मॉडल, अपना फीचर सेट, क्लास लेबल्स, हर चीज वो डिफाइन कर देते हैं। और अगेन जैसे हमने ऊपर अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन ग्लोबल का फंक्शन कॉल किया था, वी कॉल दैट फंक्शन। और हर 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 रन के अगेंस्ट बेसिकली आपका एक एक्सप्लेनेशन क्लाइंट बनता है, और उस एक्सप्लेनेशन क्लाइंट के ऊपर जो है आप अपनी इस एक्सप्लेनेशन को पब्लिश कर सकते हैं, राइट।
So we saw that कि इस experiment run के लिए जो explanation client available था we got that, और उस explanation client के ऊपर हमने जो भी यहाँ पे tabular explainer से global explanation निकाली थी, we just upload that in our training file, और that's all we have to do to add some interpretability to our models, or consequently you run that experiment, you run that estimator, or when it finishes you will be able to see your feature importance graph like this, or जो भी उसके ग्लोबल फीचर इंपॉर्टेंस वगैरह बनी है वो आपको वहां से मिल जाएगी, और उस एक्सपेरिमेंट रन को यूज करते हुए you could also download your model explanation and view it again like this. इसको करने का एक और तरीका ये है कि you go to your model और आप अपनी explanations के अंदर उसे प्रीव्यू कर लें. So for instance यहाँ पे ये उसी रन को मैं अगर विजुलाइज करूँ तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि मेरे ग्लोबल फीचर इंपॉर्टेंस भी मुझे यहाँ पे पता लग रही है कि वेरिएंस, स्क्यू, कर्टोसिस और एंट्रोपी जो भी मेरे फीचर्स आ रहे हैं इन आवर हाउस प्राइसिंग डेटा सेट, वहाँ पे यहाँ पे नंबर ऑफ बेडरूम्स, नंबर ऑफ बाथरूम्स और वो वाले फीचर्स आते हैं, और इनके इस बार चार्ट के बेसिस के ऊपर मुझे नज़र आ रहा है कि कौन से फीचर्स जो हैं वो वे इन करते हैं ओवरऑल, कौन से फीचर्स, किस फीचर की कितनी इंपॉर्टेंस है. ठीक है, मैं थोड़ा बहुत अपनी एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लोर कर सकता हूँ कि मेरे डेटा सेट के ऊपर जो प्रिडिक्शंस हुई हैं मैं उनमें से मुख्तलिफ प्रिडिक्शंस को यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो हर प्रिडिक्शन के अगेंस्ट मुझे ये पता लग रहा है कि कौन सा फीचर है जो इसे एक क्लास कह रहा है और कौन सा फीचर है जो दूसरी क्लास की तरफ इसकी प्रिडिक्शन को वे कर रहा है, और बेस्ड ऑन दैट इसकी जो भी एंड में वो बनी है, क्या नाम है, जो भी इसकी प्रिडिक्शन बनी है वो बेसिकली किस बेसिस के ऊपर आ रही है, उसके अंदर उस डिसीजन को लेने के अंदर कौन से फीचर्स वे कर रहे हैं, मुझे वो इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर मिल जाएंगे. राइट, देयर विल बी ऑफन टाइम्स जब आपने एक्सपेरिमेंट लिखते हुए अपनी स्क्रिप्ट के अंदर ये एक्सप्लेनर वाला पार्ट नहीं ऐड किया, तो व्हाट टू डू इफ दैट हैपेंस. उस सिनेरियो के अंदर इफ आई कैन शो यू हियर, उस सिनेरियो के अंदर फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मेरे पास ये ऑटो एमएल का एक्सपेरिमेंट रन हुआ था. ऑटो एमएल के एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने एक्सप्लेनर्स नहीं रन किए थे. तो फॉर इंस्टेंस ये स्टैक है, एंसेंबल है, एक्सप्लेनर स्टैक एंसेंबल मेरा एल्गोरिथम है, और इस मॉडल के ऊपर मेरी 100% एक्यूरेसी आ रही है हालांकि, but I want to be able to explain this model. I want to be able to understand the feature importances in this model, और ये मॉडल जो आउटपुट्स जनरेट करता है डेटा सेट के ऊपर मैं वो भी देखना चाहता हूँ. लेकिन एक्सपेरिमेंट रन करते हुए हम ये नहीं कर सके थे. तो ऑल वी हैव टू डू इज सिलेक्ट दिस मॉडल फ्रॉम हियर जस्ट लाइक दिस, और यहाँ पे डिप्लॉय डाउनलोड के साथ आई हैव अ थर्ड ऑप्शन ऑफ एक्सप्लेन मॉडल, और एक्सप्लेन के अंदर वी जस्ट गिव इट अ कंप्यूट टारगेट एंड वी क्रिएट एन एक्सप्लेनेबिलिटी रन, जिसके अंदर इस सेम मॉडल को विद एन एक्सप्लेनेबिलिटी क्लास इसको रन किया जाता है, और consequently इसी मॉडल के अगेंस्ट next time I open this, once the run finishes, I will be able to view the explanation just like I was able to do with, say, voting ensemble. सही है. So voting ensemble के अंदर मुझे अपने उस डेटा सेट की एक्सप्लोरेशन का भी मौका मिल रहा है, ग्लोबल इंपॉर्टेंसेस भी देख सकता हूँ, एक्सप्लेनेशन को इस तरह से एक्सप्लोर भी कर सकता हूँ वैल्यू बाय वैल्यू, और इम्पोर्टेंस की समरी के अंदर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि मेरे कितने क्या स्प्रेड है मेरे डेटा पॉइंट्स का जिनको मैंने इनपुट के लिए यूज़ किया था उस फीचर की इम्पोर्टेंस इस्टेब्लिश करने के लिए. तो मुझे
रेड साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी वैल्यूज नज़र आ रही हैं, जिसका मतलब है कि that's your high importance area in that feature, right? So that's just like the gist of it. Now we have covered hyperparameter tuning, we have covered automated machine learning, and the third thing we've covered is how to interpret models. And some of those things we've also learned how to do directly from your Azure Machine Learning Studio. Taking a look at our overall course content, तो उसके अंदर we can mark these two down basically, or which means that we have actually we've also covered this in our fifth one, which means we just have just a little bit of course content left to get over with, and then once we've covered the course content, the next thing we do is move forward to taking a look at some of the practical questions from the exam perspective. Take a look at some of the sample questions जो कि एग्जाम के ऊपर आएंगे और उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं. I guess you guys have access to the notebooks and as well as the labs, as well as the lecture recording and everything. It's been uploaded to the Google Drive folder, which has already been shared with you. Feel free to start with the labs, and if you face any problems, I and Ali are going to be here.